For the past few videos, we are stressing about to have a relationship with God that begins with the true salvation. When we call there is a true salvation, you must understand that there is a false or fake salvation too. Before explaining you how to receive a true salvation, let me tell you what is fake salvation is. पिछली कुछ वीडियो से हम भगवान के साथ संबंध बनाने पर जोर दे रहे हैं जो एक व्यक्ति के सच्चे उद्धार से शुरू होता है। जब हम सच्चे मोक्ष की बात करते हैं तो समझ ले कि नकली मोक्ष भी होता है। तो आपको यह समझाने से पहले कि सच्चा मोक्ष कैसे प्राप्त करें, मैं आपको बता दूं कि नकली मोक्ष क्या है। Because I hear people say, hey, you Christians doesn't have a problem at all. How good your God is. You people can commit sin throughout your life because whatever you do, go to the church's father on Sunday, confess your sin and get burdened. So sweet. Sin again and repeat the same throughout your life. Your God will go on forgive you. कि मैंने लोगों को कहते सुना, अरे आप ईसाइयों को कोई समस्या नहीं है, आपका भगवान कितना अच्छा है, आप लोग कर सकते हैं जीवन भर पाप करते रहो, क्योंकि तुम जो भी करो उसके पास जाओ रविवार को चर्च के पिता अपने पापों को स्वीकार करें और क्षमा करें। कितना प्यारा, फिर से पाप करो, वही दोहराओ जीवन भर, तुम्हारा भगवान तुम्हें माफ करता रहेगा। So this is absolutely a wrong idea, my friend. Firstly, God never ordained any human to forgive sin. No religious heads, let it be Pope, don't have authority to forgive sins. The scripture also says clearly, only Son of God has the authority to forgive sins. So confessing to church leaders is a wrong practice according to Bible, and your sins are not going to be forgiven in that way. यह बिल्कुल गलत विचार है मेरे दोस्त। पहली बात, भगवान ने कभी भी किसी इंसान को पापों को क्षमा करने के लिए नियुक्त नहीं किया। कोई धार्मिक मुखिया नहीं, वो पोप हो, पापों को क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है। पवित्र शास्त्र भी स्पष्ट रूप से बताता है कि केवल परमेश्वर का पुत्र पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है। तो चर्च के नेताओं को कबूल करना बाइबल के अनुसार एक गलत प्रथा है और आपके पापों को इस तरह से माफ नहीं किया जाएगा। So secondly, no one in the Bible encourages people to live in sin so that God will forgive their sins continuously. Wherever Jesus performed miracles and healed people, he ordered them not to sin again. Moreover, the scripture also strictly says like this, he who conceals his sins will not prosper, but whoever confesses and renounces will find mercy. Turn your attention to the word renounces. It means one who forbid, abandon, forsake, give up. The one who turns from that sin, Bible says, will find mercy. So it is clear that Bible didn't encourage anyone to stick with sin. Instead, it warned and expect you to abscond from sinning again. दूसरे, बाइबल में कहीं नहीं, यह लोगों को पाप में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि भगवान उनके पापों को लगातार माफ कर दे। जहाँ कभी यीशु ने चमत्कार किए और लोगों को चंगा किया, उसने उन्हें फिर से पाप न करने का आदेश दिया। इसके अलावा पवित्र शास्त्र इस तरह कहता है, जो अपने पापों को छुपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें स्वीकार करता है और त्याग देता है वो दया पाता है। अपना ध्यान त्याग शब्द की ओर मोड़े। इसका अर्थ है मना करना, छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। जो उस पापों से मुकर गया, बाइबल कहती है, वो दया पाएगा। तो यह स्पष्ट है कि बाइबल ने किसी को भी पाप से चिपके रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि यह चेतावनी दी और आपसे फिर से पाप करने से बचने की अपेक्षा की। Some people mistook the following scriptures that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. That's why people have a wrong idea that I believe in Jesus, I confess and agree Jesus is Lord, so that I am saved, so that I am a Christian. No, it's not in that way. By simply believing and confessing through your lips is not enough. To get true salvation, you have to do more. But sadly, many doesn't know the deeper meaning of the scripture
And the way to attain true salvation, they simply confess by their lips and falsely believes that they are get saved. लोगों ने निम्नलिखित शास्त्र को गलत समझा कि यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करो यीशु ही प्रभु है और अपने मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तुम बच जाओगे। यही कारण है कि लोगों का यह गलत विचार है कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ कि वो प्रभु हैं ताकि मैं बच जाऊं। मैं एक चुनसियन हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल अपने होठों से विश्वास करना और स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है। सच्चा मोक्ष पाने के लिए आपको और अधिक करना होगा। लेकिन दुख की बात है कि बहुत से लोग मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ और तरीका नहीं जानते हैं। वे अपने होठों से कबूल करते हैं और झूठा मानते हैं कि वे बच गए हैं। The Bible says, you believe that there is one God, that is fine. Even the demons believe that and they tremble with fear. Here you can see that even the evil spirit know there is God. They know who He is. They believe and tremble before Him in fear. Whenever Jesus chased the devils, they confess that He is Lord. Can we bring these devils in the believers list just because they confess and believe that Jesus is Lord? बाइबल कहती है, आप मानते हैं कि एक ईश्वर है, यह ठीक है। यहाँ तक राक्षस भी ऐसा मानते हैं और डर से कांपते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि दुष्ट आत्मा भी जानती है कि ईश्वर है और वे जानते हैं कि वो कौन है। वे विश्वास करते हैं और डर के मारे उसके सामने कांपते हैं। जहाँ कहीं यीशु ने दुष्ट आत्माओं का पीछा किया, वे स्वीकार करते हैं कि वो परमेश्वर है। तब क्या हम इन दुष्ट आत्माओं को विश्वासियों की सूची में ला सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वे यहोवा का भय मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान मसीह है? No, we can't. Because even though they do so, there won't be any changes in their character, their evil doings and the bad habits. They'll still behave in the same old ways. There won't be any change in their character. So if you want to be called God's children, confession through your mouth is not going to be enough. Here only most of the false Christians are convinced, I have accepted Jesus, I took baptism, I joined a church so that I am a Christian. There won't be any changes within them, like the devils do. They also fear God by their lips, but will stick on to do the same old sins again and again. नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर भी वे अपने चरित्र, बुरे कामों और बुरी आदतों को नहीं बदलेंगे। वे अब भी वही पुराने तरीके से व्यवहार करेंगे। उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए यदि आप वास्तव में भगवान की संतान कहलाना चाहते हैं, तो अपने व्यवहार में बदलाव देखना चाहिए। आपके मुंह से स्वीकारोक्ति पर्याप्त नहीं होगी। यहाँ केवल अधिकांश झूठे ईसाई आश्वस्त हैं कि मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया है, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं एक चर्च में शामिल हो गया, इसलिए मैं एक ईसाई हूँ। इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे शैतान करते हैं, वे भी परमेश्वर से डरते हैं, अपने होठों से कबूल करते हैं, लेकिन वही पुराने पापों को बार बार करने के लिए डटे रहेंगे। So that we are not considering those people who change their name, take baptism, convert religion to get married or to get a job, or not a true Christians. According to us, anything without a change of heart is false Christianity. ताकि केवल हम उन लोगों को नहीं मान रहे हैं जो अपना नाम बदलते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं या नौकरी के लिए सच्चे ईसाई नहीं हैं। हमारे अनुसार हृदय परिवर्तन के बिना कुछ भी झूठी ईसाई धर्म है। In simple manner, understand that only Jesus has the authority to forgive sins. Bible never ever says that you are free to do sin. God will forgive all your sins. Living in sin and being a Christian is not possible. If you come across with any of these, know that they are false Christians. May God bless you till we meet again. सरल तरीके से समझें कि केवल यीशु के पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। बाइबल कभी नहीं कहती है कि आप पाप करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। भगवान आपके सभी पापों को क्षमा कर देंगे। पाप में रहना और ईसाई होना संभव नहीं है।
इसलिए यदि आप इनमें से किसी के साथ मिलते हैं तो जान ले कि वे झूठे ईसाई हैं। भगवान आपको तब तक आशीर्वाद दे जब तक हम फिर से न मिलें।